وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے 5 ارب روپے امداد کے پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا افغانستان کے لیے خصوصی بین الوزارتی رابطہ سیل کا دورہ، افغانستان پر ایپکس کمیٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے 50,000 ٹن امدادی اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ گندم، ادویات، طبی آلات اور سردی سے بچاؤ کا سامان بھی شامل ہوگا۔ افغانستان سے ہم درآمدات پر سیلز ٹیکس میں کمی کر دی گئی۔ افغان شہریوں کو 3 ہفتے میں پاکستان کا ویزا جاری ہوگا۔ ایپکس کمیٹی نے بھارت کو پاکستان کے راستے افغانستان کے لیے 50,000 میٹرک ٹن امدادی گندم بھجوانے کی بھی اجازت دے دی۔ افغانستان میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطے مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ بینکنگ چیلنجز کو اس قابل بنایا جائے کہ افغانستان کو درپیش معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی ارکان کانگریس گریگری میکس اور ایمی بیرا سے گفتگو۔ جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں عدالتوں میں تو کبھی کوئی لیک آ جاتی ہے، کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، نہیں آتی تو وہ رسیدیں نہیں آتی جس کا پوری قوم کو انتظار ہے۔ اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپین چلانا بند کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں مجموعی صورتحال پر غور، انتخابی اصلاحات کے لیے قانون سازی کے بعد ضروری اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو قانون سازی کی روشنی میں انتخابی اصلاحات پر عمل کرنا ہے۔ اپوزیشن اداروں کے خلاف کیمپین بند کرے۔ شریف خاندان نے لندن اپارٹمنٹس پر غلط بیانی کی، مواقع ملنے کے باوجود عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے۔ کیس کی ہر سماعت کے موقع پر کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ IMF نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ کووڈ کے باوجود اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب جاری ہے۔ بجلی کے نرخ میں ایڈجسٹمنٹ، ٹیکس کے نظام میں بہتری، اخراجات میں احتیاط اور مالیاتی نظم و ضبط چند اہم اقدامات ہیں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان کامیاب مذاکرات، معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ملیں گے۔ حتمی منظوری IMF بورڈ دے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کرونا کے باوجود پاکستان کی معاشی ترقی اور اقتصادی اشاریوں میں بہتری کا اعتراف کیا ہے۔ مشیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر توانائی حماد اظہر کی نیوز کانفرنس۔ سرمایہ کاروں کو سازگار کاروباری ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاجر تنظیمیں ٹیکس ادا کرنے کی ترغیب دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے کورونا کے دوران کاروباری برادری اور معاشرے کے کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد سے گفتگو۔ نواز شریف اور ان کا خاندان آج تک لندن محلات کی رسیدیں پیش نہ کر سکا۔ کبھی قطری خط، کبھی کیلبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کبھی مرحوم جج ارشد ملک کی ویڈیو، رانا شمیم کا جعلی حلف نامہ اور کبھی جعلی آڈیو ٹیپس لاتے ہیں۔ پاناما انکشافات کے بعد سوائے جھوٹ اور جعلی دستاویزات کی عدالتوں میں کچھ جمع نہیں کرایا۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بس سروس کے آغاز پر اتفاق، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے جلد افغان حکام سے بات چیت کریں گے پاکستانی سفیر۔ چین کا بھی افغان عوام کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ۔ امدادی سامان میں خوراک، کپڑے، کمبل اور دوسری ضروری اشیاء شامل ہیں۔ مال گاڑی چین کے علاقے سنکیانگ سے براسا واخان افغانستان میں داخل ہوگی اور 12 روز میں مزار شریف پہنچے گی۔ پنجاب حکومت کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے اہم فیصلے۔ لاہور میں تمام سرکاری اور نجی اسکول ہفتے میں 3 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ نجی دفاتر بھی 3 دن بند رہیں گے۔ عملہ گھر سے کام کر سکے گا۔ فیصلوں کا اطلاق 15 جنوری تک ہوگا۔ فیصلوں پر عمل درآمد میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پاک ایران سرحد کے قریب پنجگور کے علاقے میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی سپاہی جلیل خان شہید۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں ISPR۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, निहत्ते कश्मीरी भारतीय काबिज फौज की बर्बरियत का शिकार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत पंजाब के इलाके पठानकोट में भारतीय फौजी कैंप पर हमला, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने तहकीकात रोकने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात जारी। एनसीओसी की टीमों और जिले इंतजामिया के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और अवामी मुकामात पर एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इकदामात। वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माने आयद। In the air and gone. Another full toss, it hangs in the air, someone circling, yes! Short in the air and taken. What a catch that. That'll help. Or will it? No, it won't. ढाका में T20 सीरीज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान की 5 विकेट से कामयाबी। हैदर अली के 45 और मोहम्मद रिजवान के 40 रन, मोहम्मद वसीम और उस्मान कादरी की 2-2 विकेट्स। पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर से चिटागोंग में शुरू होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बांग्लादेश में मद्दाहों का पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शानदार खैर मकदम। ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी परचम लहराते शायकीन का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। और भारतीय शहर भुवनेश्वर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी जूनियर टीम ने कनाडा को भी प्रैक्टिस मैच में शिकस्त दे दी। नायब कप्तान मोइन शकील ने वाहिद गोल स्कोर किया। वर्ल्ड कप में कौमी जूनियर टीम अपना पहला मैच 24 नवंबर को जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूँगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 5 अरब रुपए की इमदाद की मंजूरी दी है। इमदादी अशिया में 5000 मीट्रिक टन गंदम, अद्वियात, तिब्बी आलात और सर्दियों से बचाव का सामान शामिल है। इस बात की मंजूरी वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के लिए कायम बैनुल वज़ारती राब्ता सेल के दौरे और एपिक्स कमेटी के इजलास के दौरान दी। इजलास में अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली अहम दरामदात पर सेल्स टैक्स में कमी की भी मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले तमाम अफगान बाशिंदों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगी। इजलास में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए 50,000 मीट्रिक टन इमदादी गंदम की राहदारी और इलाज मौलजी के लिए भारत में फंसे अफगानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी पर मदद की इजाज़त दी गई और अफगानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी वीज़े का हसूल आसान बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते के अंदर इजरा यकीनी बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने बॉर्डर मैनेजमेंट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पेशावर जलालाबाद बस सर्विस बहाल करने और सरहदों की सवाबदीदी बंदिश की ममानियत करते हुए बॉर्डर्स पर तैनात एहलकारों के इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान बहादुर तरीन कौम है जिन्होंने मुश्किल हालात का सामना किया। कई साल के तनाज़ात के बाद बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अफगान अवाम की मदद करें ताकि वो अमन और इस्तेहकाम के माहौल में रह सकें। एपेक्स कमेटी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान का नोटिस ले और हंगामी बुनियाद पर हर मुमकिन मदद के लिए इक़दामात उठाए। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर को अफगानिस्तान का दौरा करके वफूद की सतह पर अफगान हुकाम से इमदाद के हवाले से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। नाज़रीन, अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ग्रेगरी मेक्स और एशिया बहरुल काहिल, वस्त एशिया और जौहरी अदम फैलाव के लिए ज़िली कमेटी के चेयरमैन एमी बेरा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। अरकान कांग्रेस का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि इनके दौरे से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
افغانستان میں بدلتی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن امریکہ کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نقد رقوم کی منتقلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے طریقے اور ذرائع تلاش کیے جائیں گے اور بینکنگ چینلز کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ افغانستان کو درپیش معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کے ساتھ صحت، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں تعاون کیا جانا چاہیے۔ حکومتی ترجمانوں کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا ہے۔ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کی پارلیمان سے منظوری کے بعد ان پر عمل درآمد، موجودہ سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی طرف سے اداروں کے خلاف مہم پر غور کیا گیا۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ جب بھی نواز شریف یا مریم نواز کے کیس میں سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو کوئی لیک یا ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، لیکن رسیدیں سامنے نہیں آتی ہیں۔ کبھی ایک جج کی کوئی تصویر فیک کر کے ویڈیو دے دیتے ہیں، کبھی دوسرے جج کی دے دیتے ہیں، کبھی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، کبھی کسی کا آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اصل مدعے میں کیوں نہیں رہ رہے؟ آپ اصل اپنا جو دفاع ہے وہ کیوں پیش نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے ادوار جو تھے وہ کیا تھے اور ان میں جتنی کرپشن ہوئی وہ بھی سب کو پتا ہے۔ لہٰذا اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ ٹیپ کس کی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہوا، قوم سمجھتی ہے کہ جو ان کی رسیدیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ عمران خان پر ایک کیس درج ہوا تو انہوں نے اپنی 40 سال پرانی رسیدیں بھی عدالت کے روبرو پیش کر دیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے شفاف انتخابات کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر وہ تیزی سے آگے بڑھے، اپنی ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ قانون جو ہے وہ موجود ہے، قانون آ چکا ہے اور یہ لاکھوں لوگ جو ہیں اب پاکستان سے باہر بسنے والے انہوں نے ووٹ ڈالنی ہے۔ لہٰذا آج وزیر اعظم صاحب نے وزیر داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ جو پاسپورٹس بنانے کا جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے اور جو اس کی سہولت جو ہے اس میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ عام جو اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا وہ ووٹ اس کو ڈالنے میں کوئی جو پرابلم ہے وہ پیش نہ ہو۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اپوزیشن عدلیہ اور فوج کے خلاف مہم بند کرے، ہمارے آئین میں ان دونوں اداروں کو تحفظ حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن دونوں اداروں کو نشانے پر رکھے ہوئے ہے جو غیر مناسب ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان چھٹے جائزے کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو 1 ارب 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز قرض دے گا۔ اسلام آباد میں وزیر توانائی حماد اظہر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ IMF کی جانب سے جاری کردہ کل رقم 3 ارب 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز ہو جائے گی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار۔ مشیر خزانہ شوکت طرین نے کہا کہ IMF نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے جون تک کے کارکردگی اہداف کامیابی سے حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے نے FATF پر عمل درآمد، FBR اور اسٹیٹ بینک کی کارکردگی سمیت کامیاب پاکستان پروگرام اور توانائی کے شعبے میں کی گئی اصلاحات کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی، جس کے لیے پارلیمان کی منظوری ضروری ہوگی۔ ہمیں کاروباری ماحول میں آسانیوں کے ساتھ ٹیکس قوانین میں بہتری اور ٹیکس ادائیگیوں سمیت سرکاری اداروں میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ کووڈ کے باوجود اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب جاری ہے اور ریفارم ایجنڈا اس میں بھی کامیابی سے یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بیسیکلی ویئر آن دا رائٹ ٹریک۔ پاکستانی انٹرنیشنل جو سپلائی چین میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں اس سے متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انفلیشن جو ہے وہ ایک قسم کا ایشو ہے، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی ہمارے سے ایگری کیا ہے کہ اس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہیں لینے پڑیں گے۔ ہماری تو ایک تو گروتھ ہماری اچھی ہونا شروع ہوئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے
टैक्स जो है हमारा तकरीबन 200 अरब रुपया 4 महीनों में अपने टारगेट से ज़्यादा है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना के बायस मुआशी मसाइल पैदा हुए और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों के किए गए बिजली के महंगे मुआहदों के बावजूद IMF मुआहदे का 200 यूनिट तक के बिजली के सार्फिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। IMF की टीम ने तस्लीम किया कि एनर्जी के शोबे में मिसाली काम हुआ है और सर्कुलर डेट के इजाफे में जो तेज़ी से कमी आई है उसको उन्होंने अप्रीशिएट किया। इसके अलावा जो हमारा विंटर का सीजनल एनर्जी पैकेज है जिसमें हम जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होएगी घरों में पिछले साल की बनिस्बत वो 12 रुपये 96 पैसे की होगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस एग्रीमेंट का IMF का, वो एज इट इज़ रहेगा। हमारा इंडस्ट्रियल एनर्जी टैरिफ जिसमें हम इंक्रीमेंटल बिजली जो है वो 12 रुपये 96 पैसे की दे रहे हैं और पीक आवर्स हमने ख़त्म कर दिए थे इंडस्ट्री के लिए, वो भी एज इट इज़ ही रहेगा। अगले चंद माह कोई मजीद बेस टैरिफ के अंदर अभी फ़िलहाल हम राइज नहीं देख रहे। मुशीर खजाना ने कहा कि बहुत जल्द अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी करके अफरात-ए-ज़र पर काबू पा लिया जाएगा। शौकत तरीन का कहना था कि हम आम आदमी को मुश्किलात से निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मुस्तहकम हुई है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 174 रुपये 4 पैसे जबकि कीमत फ़रोख्त 174 रुपये 9 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 175 रुपये जबकि कीमत फ़रोख्त 176 रुपये 5 पैसे रही। 19 नवंबर को इंटरबैंक में डॉलर के रेट 175 रुपये थे जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 175 रुपये 5 पैसे जबकि कीमत फ़रोख्त 177 रुपये थी। मौशी माहिरीन के मुताबिक IMF की जानिब से किस्त जारी होने के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद इस्तेहकाम आएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत ताजरों को मुसाबकती और मुनसिफाना कारोबारी माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सनत तिजारत के ईवान टैक्स अदा करने की तरगीब देने में अपना किरदार अदा करें। सदर ममलिकत ने यह बात इस्लामाबाद में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने कोरोना के दौरान कारोबारी, बरादरी और मुआशरे के कमज़ोर तबकात को रिलीफ फराहम किया। वफ़द ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी, खास तौर पर महसूलात की वसूली और तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। शुरका ने सदर ममलिकत को अपने मसाइल से आगाह किया जिसके हल की यकीन दहानी कराई गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शाम के वज़ीर तालीम डॉक्टर दारीम तबा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दमिश्क में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल म्यारी तालीम फराहम करने वाला मारूफ इदारा है। ये इदारा शामी तलबा को बैनुल-अक़वामी म्यार के मुताबिक तालीम फराहम करता रहेगा। उन्होंने इक़्तिसादी और सेहत के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुलाकात में यह भी तय पाया कि पेशा वराना और आला तालीमी इदारों के पाकिस्तानी इदारों में शामी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत, IT, टेलीकॉम, तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की तिजारती इदारे कारोबार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में जापान, नॉर्वे, पोलैंड और कंबोडिया के नामजद सफ़ीरों से बातचीत करते हुए कही, जिन्होंने सदर ममलकत को अपने इसनाद सिफारत पेश की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दोस्त मुल्कों के साथ तिजारती और मौशी ताउन को मज़ीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। नामजद सिफारतकार अपने मुल्कों के कारोबारी इदारों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नामजद सफ़ीर सियासी, तिजारती, सिफारती और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि इंसानी इमदाद की फराहमी पर इमदाद ज़रूरी है। नामजद सफ़ीर ऐवान सदर पहुँचे तो उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि मरियम नवाज की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16वीं इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि दूसरी तरफ अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम की जा रही है। ये लोग सिसिलियन माफिया नहीं हैं तो और क्या हैं?
अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इरफान कादिर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज के केस के इल्तवा के लिए पेश की जाने वाली दरख्वास्त भी शेयर की। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ ख़ानदान पहले दिन से ये ताख़ीरी हरमों के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि केस के असल हक़ाइक़ पर बात न हो। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ये बात वाज़ेह है कि सारा मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम सफदर की अपील की सुनवाई का है। अदालत अपील न सुनती और मुजरमा की ख्वाहिश के मुताबिक केस मुलतवी रहता तो सब खैर थी। आईनी इदारों को मुतनाज़ बनाने का फंडेड एजेंडा काफ़ी पुराना है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि पनामा इंकशाफ़ात के बाद नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान ने झूठ और जाली दस्तावेज़ात के अलावा अदालतों में कुछ जमा नहीं कराया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कभी कतरी ख़त, कैलिबरी फ़ॉन्ट और जाली ट्रस्ट डीड, कभी मरहूम अरशद मलिक की ब्लैक मेल करके वीडियो, कभी राना शमीम का जाली हलफनामा और कभी जाली ऑडियो टेप पेश की गई, लेकिन नवाज शरीफ ख़ानदान आज तक लंदन महलात की रसीदें पेश नहीं कर सका। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मरियम सफदर ने टीवी पर झूठ बोला कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बाद में मालूम हुआ कि लंदन में जायदादों की बेनिफिशियल ओनर हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी हुकूमत का अमली इक़दाम है। PFUJ वर्कर्स के सदर परवेज़ शौकत और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट पैनल के बानी चेयरमैन फ़ारूक फैसल खान से अलग अलग मुलाकात में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी से मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। परवेज़ शौकत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी पर चौधरी फवाद हुसैन समेत तमाम हुकूमती अरकान की काबिशों को सराहते हुए कहा कि इस सिलसिले में अपोजिशन का रवैया काबिल मज़म्मत है। फ़ारूक फैसल खान ने वज़ीर इत्तलात से मीडिया टाउन के तौसी मंसूबे के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल तलबा के हाथ में है। नौजवानों ने IT में इनकलाब बर्पा किया है। पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तलबा और यूनिवर्सिटियाँ ही मुल्क की तकदीर बदल सकती हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तलबा के हाथों में है। मुल्क की तकदीर बाहर से किसी ने आकर तब्दील नहीं करनी, बल्कि हकीकी तब्दीली तालीम याफ्ता नौजवान और यूनिवर्सिटियाँ लेकर आएंगी। स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका एक क्लोज लिंकेज जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, उसके साथ हो। आप अपने लिए टारगेट्स क्रिएट करें। आप कितनी बड़ी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन करेंगे हर साल में, 2 साल में, 3 साल में, क्योंकि जो नौजवान हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आ रहे हैं, इन्हीं की ऊपर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसी ने पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी बदलना है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत के शोबे को अवलीन तरजीह देते हुए मिसाली इक़दामात किए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मयारी तालीम के रुझान को जारी रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राअत की GDP में कंट्रीब्यूशन 19% है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इस मुल्क की इकॉनमी को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में आ खड़ा हो। वाइस चांसलर डॉक्टर कमरुज़्ज़मा और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि बारानी ज़री यूनिवर्सिटी ज़री तालीम और बारानी इलाकों में ज़री तहकीक के हवाले से अहम किरदार अदा कर रही है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तामीरी रवाबित का फ़रोग़ ख़ित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के लिए अहम है। इस्लामाबाद में अमरीकी ख़ारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ग्रेगरी मीक्स की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत और सरमायाकारी के लिए रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीका सरमायाकार 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मंडी में पुरकशिश मौक़े से फ़ायदा उठाएँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में सरमायाकारी करें। खित्ते की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने अमरीकी वफ़द से सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम से भी आगाह किया। अमरीकी वफ़द ने अफ़गानिस्तान से अपने शहरियों के महफूज इनखला में भरपूर मुआवनत पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अमरीकी कांग्रेस की उमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन ग्रेगरी मेग्स की सरबराही में वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि दोनों के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी हमारी मुश्तरक कदरें हैं। चेयरमैन अमरीकी कांग्रेस कमेटी बराए खारजा अमूर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि इत्तेफाक राय तालिबान के आला सतह के वफ़द के इस्लामाबाद के हालिया दौरे में किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए जल्द अफगान हुकाम से बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि ये बस सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। दूसरी जानिब चीन ने अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रेन रवाना की है। ये मालगाड़ी चीन के इलाके सिंकियांग से बरास्ता वाखान अफगानिस्तान में दाखिल होगी और 12 रोज़ में मज़ार शरीफ पहुंचेगी। काबुल में चीन के सफ़ीर वांग जू के मुताबिक ट्रेन में 1000 टन से ज़ायद इमदादी सामान में खुराक, कपड़े, कंबल और दूसरी अशिया शामिल हैं। मगरबी ताकतों की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद किए जाने के बायस अफगान अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उन्हें खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी अशिया की बदतरीन किल्लत का सामना है। अफगानिस्तान में जलालाबाद एयरपोर्ट 20 साल बाद मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुसाफिर और कार्गो परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है। हवाई अड्डे के मुंतज़िम का कहना है कि तमाम टेक्निकल अमला काम पर वापस पहुंच चुका है और हमारे पास एयरपोर्ट को मज़ीद तरक्की देने की सलाहियत मौजूद है। गुज़श्ता 20 साल के दौरान जलालाबाद एयरपोर्ट अमरीकी फ़ौज का हेडक्वार्टर था और उसे सिर्फ फ़ौजी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अमरीकी फ़ौज जाते वक्त उसे बुरी तरह तबाह बर्बाद कर गई थी। दहशत गर्दों के ग्रुप ने पाक ईरान सरहद के करीब पंजगोर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में डेरा इस्माइल खान के रिहायशी सिपाही जलील खान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम को मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के दरमियान मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में सयाहत के फ़रोग़ और सनअती तरक्की के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की इंसानियत सोचकार रवैयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जाली पुलिस मुकाबलों में नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है। सादिक संजरानी ने कंट्रोल लाइन के साथ आबाद शहरियों को तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने पर भी जोर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया है कि वो कश्मीर के बारे में सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करें, जिसमें भारत से सख्ती से कहा जाए कि वो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी बंद करे और आलमी इदारे की करारदादों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए साजगार माहौल कायम करे। KMS सर्विस के मुताबिक हुर्रियत तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अंतोनियो गुतरेस पर जोर दिया कि वो दिल्ली हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दें कि आलमी बिरादरी मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौजियों की तरफ से बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस और इंसानी हुकूक के अलंबरदार मोहम्मद एहसन ओंतो ने अपने बयानात में कहा कि हैदरपुरा जाली मुकाबले में शहरियों के कत्ल से साबित हो गया है कि दहशतगर्द भारतीय फ़ौज बेगुनाह लोगों की बेदरेख नस्लकुशी कर रही है। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने श्रीनगर में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ की रिहाइशगाह और दफ्तर समेत मुतादिद मकामात पर छापे मारे। एहलकारों ने श्रीनगर के इलाकों सोनावार और अमीर कदल में के अलावा दीगर मकामात पर भी तलाशी ली। भारतीय रियासत पंजाब में पठानकोट के इलाके अधरपुल में एक भारतीय फौजी कैंप पर दस्ती बम से हमला किया गया। हमले के बाद पठानकोट में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है।
नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम मुजाहरे में हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में सोची समझी साजिश के तहत इंसानी हकूक़ की पामालियों में मसरूफ़ है। मुकर्रीन ने बेगुनाह अफराद के मावराए अदालत कत्लेआम की पुरजोर मजम्मत कर आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मजालिम बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। मुजाहरे के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी ज़ायरीन के वफ़द ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान और सिफारतकारों के हमरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाज़िरी दी और मज़ार पर चादर चढ़ाई। दरगाह शरीफ पर वफ़द के सजादा नशीन दीवान सैयद ताहिर निज़ामी और दरगाह कमेटी के दूसरे अरकान ने खैर मकदम किया। पाकिस्तानी ज़ायरीन ने दरगाह के अहाते में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाज़िरी दी और फातिहा ख़्वानी की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 718वें उर्स मुबारक में शिरकत के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी अमजद अली की क़यादत में पाकिस्तानी ज़ायरीन का 60 रुकनी वफ़द 18 से 25 नवंबर तक भारत के दौरे पर है। दहशत गर्दी से निमटने और सलामती को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से रूस पाकिस्तान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास मॉस्को में हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से मुतल्लिक उमूर, मौजूदा चैलेंजेस और उभरते हुए खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने दहशत गर्दी के खिलाफ एक दूसरे की कोशिशों को तस्लीम करते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात के नतीजे में खाने पीने की बुनियादी अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आई है और आटा, चीनी, टमाटर समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। शुमारियात ब्यूरो ने कीमतों के इशारियों में रद्दबदल की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है। अदादो शुमार के मुताबिक महंगाई के दबाव पर काबू पाने के इक़दामात की बदौलत चीनी की कीमत में 4.25% कमी देखी गई। आटे की कीमत में 0.8% कमी, टमाटर 5.77%, प्याज 2.1%, गुड़ 1.48%, जबकि आलू 1.36% और दाल मसूर की कीमत में 0.43% कमी आई है। दूसरी जानिब दरामदी चीनी के मकामी मार्केट में आने से चीनी की कीमत में 30 से 40 रुपए तक की कमी हुई है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक जायजा मुद्दत में 51 अशिया में से 10 की कीमतों में कमी, जबकि 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़ख़र इमाम ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर का कहना था कि हमने गंदम, चावल, गन्ने और कपास की फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 500 इदारे ज़राअत पर रिसर्च कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में यूएसएड की जानिब से हिफाजती सामान और लेबॉर्ट्री आलात के अतिये पर कस्टम ड्यूटी की छूट की मंजूरी दी गई। कमेटी ने बलकसर, मियांवाली और मियांवाली मुजफ्फरगढ़ शाहराह की बहाली के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की भी मंजूरी दी। इजलास में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स की मंजूरी देते हुए जनवरी के वस्त तक इदारे की निजकारी मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई। कमेटी ने अफगानिस्तान की जानिब से दरामद की जाने वाली अशिया पर जज्बा खैर सगाली के तहत टैक्स छूट के लिए वज़ारत तिजारत की जानिब से पेश करदा सबरी की भी मंजूरी दी। शाम के वज़ीर तालीम डॉक्टर अदीम तबा ने इस्लामाबाद में वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और शाम साइंस और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर दोनों ममालिक ने कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में शिरकत के लिए असातिज़ा, अदीबों और फनकारों के बाहमी दौरों पर इत्तेफाक किया। अफ्रीका ने फ़न व अदब के शोबे में काम करने वाली तंजीमों के दरमियान बराह रास्त राब्तों पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और शाम ने तालीम, सकाफत, साइंस, तकनीकी और पेशा वराना तरबियत और फ़नून समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की हौसला अफजाई और फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा मुआहदे पर भी दस्तखत किए। नाज़रीन, पंजाब में स्मॉग और बढ़ती हुई आलूदगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में सरकारी और निजी स्कूल्स हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला किया है। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता, इतवार और सोमवार को स्कूल्स बंद रहेंगे। तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज़ के लिए बंद होंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं लाहौर से नवीद हयात। लाहौर की फ़िज़ाओं में गुज़श्ता कई रोज़ से स्मोक का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक दर्जे पर पहुंचने के बायस सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का शुमार आलूदा तरीन शहरों में हो चुका है। स्मोक के बायस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर की हदूद में तमाम सरकारी और निजी तलीमी इदारों को हफ्ते में 3 रोज़ बंद करने का फैसला किया है। ये तलीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम कर सकेंगे। लाहौर की हदूद में तमाम निजी दफातर भी सोमवार को बंद रहेंगे और निजी दफातर का अमला घर से काम कर सकेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका इतलाक 15 जनवरी 2022 तक होगा। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट इसको सराहता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इस पे तमाम बच्चे वगैरह और स्कूल अदारे इस पे अमल करेंगे। ये लोग की बीमारियों से बचेंगे और इससे अच्छे नताइज हासिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार देते हुए फसलों की बाकियात, फैक्ट्रियों में टायर जलाने और कूड़ा करकट को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इंतजामिया इन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक है और इस हवाले से फैक्ट्रियों और मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकदमे की समाअत करते हुए तहकीकात रोकने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुसाबकती कमीशन को इख्तियारात बरूए कार लाते हुए घी मिल्स के खिलाफ तहकीकात करने की हिदायत की है। अदालत ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है, जिसका जायजा जरूरी है। मुसाबकती कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बायस घी मिल्स के खिलाफ तहकीकात तात्तुल का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन ने शिकायत पर 117 घी मिल्स के खिलाफ तहकीकात शुरू की और इससे कबल मुतल्लिका मिल्स को मुरासले इरसाल किए गए। मिल्स की तरफ से मौसूल होने वाली जवाबात पर घी और तेल की कीमतों में इजाफे की तहकीकात शुरू की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि वकला का फ़र्ज़ है कि इंसाफ की फराहमी के लिए अदलिया की मुआवनत करे ताकि मुकदमात का कानून के मुताबिक बर वक्त फैसला किया जा सके। इस्लामाबाद में पंजाब बार काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में चीफ जस्टिस का कहना था कि वकालत बाइज़्ज़त पेशा है। इसके वक़ार और अज़मत को पेश नज़र रखते हुए वकला को चाहिए कि अपने मुकदमात पर दलाइल दें और जजेस के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखें। वफ़द ने चीफ जस्टिस को बताया कि गुज़िश्ता 4 माह में पंजाब भर में अदालतों में वकला ने कोई हड़ताल नहीं की, जबकि गफलत बरतने वाले वकला के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज़ भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने वकला के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कवानीन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर माहिरीन और फरीकों के मुआवनीन मुकर्रर करके रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने मामले पर सदफ बेग, निगहदाद, फरीहा अजीज़, राफे बलोच, PFUJ और पाकिस्तान बार काउंसिल के मुआवनीन मुकर्रर किया, जो नए सोशल मीडिया रूल्स का जायजा लेंगे कि ये आइन से मुतसादिम तो नहीं। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्ला ने केस की समाअत की। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। मुस्बत केसेस की शरह 8.86% रिकॉर्ड की गई। NCOC की टीम्स कोरोना SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैश एंड कैरीज और मार्केट्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद और सार्फिन और अमले की वैक्सीनेशन का जायजा लिया। टीम ने सेंटोरस मॉल, F7, F6 और दीगर इलाकों में वाक़े मुख्तलिफ दुकानों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर कोरोना वैक्सीन न लगाने वाले अमले और सार्फिन पर भारी जुर्माने आयद किए। इंतजामिया ने वैक्सीन के लाजमी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और कैश एंड कैरीज को सील भी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की कि वो अपनी दुकानों के दाखिली रास्तों पर एक नोटिस लगवाएं जिसमें ये लिखा जाए कि गैर वैक्सीन शुदा अफराद का दाखिला ममनू है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 322 नए केस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.86% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान 37,148 अफराद के टेस्ट किए गए और मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 28,672 हो गई है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 92 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 1255 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 874 लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं। दीगर शहरों के सरकारी अस्पतालों में 381 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डेंगू के मरीजों के लिए पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 5016 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुखालिफिन की कोई परवाह नहीं है। PDM का एजेंडा मुल्की तरक्की को रोकना है। लाहौर में अरकान कौमी असम्बली नवाब शेरोसेर, करामत अली खोखर, सरदार तालिब नकई और राहत अमानुल्लाह से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि यकसा तरक्की के लिए हर ज़िले को अलहदा तरक्याती पैकेज दिया गया है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वसाइल पर पहला हक पसमानदा तरीन इलाकों का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में मुनक़िदा तकरीब में कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के सुपुर्द की। कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन हसन अल सलीती ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याज़ी ने उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से उनका तारुफ कराया गया। कतरी कमांडर और सरबराह पाक बहरिया के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने खित्ते में समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और अमन को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। कतरी बहरिया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात की। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन हसन अल सलीती से बातचीत करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है। कतरी बहरिया के सरबराह ने पेशावराना महारत और हवाबाजी की सनत में खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न पाक फ़ज़ाइया की तारीफ़ की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि समुद्र पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है और हुकूमत ने उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। बैरून मुल्क मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले पाकिस्तानियों को अवार्ड देने की तकरीब का अहवाल बताएंगे मुअज़्ज़मुद्दीन। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है, जो अरबों रुपए के ज़र मुबादला की शक्ल में न सिर्फ मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के जरिए मुल्क का नाम भी रोशन किए हुए हैं। मुल्क की मौजूदा क़यादत की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस किरदार को हर सतह पर सराहा जा रहा है। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तकरीब में गवर्नर पंजाब ने मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम 45 पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए। प्रदेश डिफ़िकल्ट होता है, इतनी आसान नहीं होता, जहाँ पे भी इंसान होता है, लेकिन है कि मेहनत की, अल्लाह ने उसमें बरकत दी है और हम अपने वतन को अपना जो कर्ज है वो अदा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं और जो हम लोग वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं और जो हमारे कौम के लिए जो हम कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रही है। ये सब प्यार करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत पेट्रियट होते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ अपनी मिट्टी में होता है, अपने दिल उस पाकिस्तान के लिए होता है और उनकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने जो कामयाबी हमें मिली है उसका किसी तरह सरमाया पाकिस्तान को भी पहुंच सके। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि जब भी मुल्क को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ी है, उन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर खिदमत फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफ़ीर हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। We really are proud of our overseas Pakistanis. You are making a tremendous contribution for the people of Pakistan. और मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत प्रोमिनेंट हमारे पाकिस्तानी भाई और ख़ासकर हमारे सिख भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी खोलकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले सिखों को बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जबकि बजट एलोकेशन स्ट्रेटजी के तहत 60% बजट जारी तरक्याती मनसूबों और 38% बजट नई तरक्याती स्कीमों के लिए रखा गया है। कराची में असिस्टेंट कलेक्टर्स के वफ़द से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सेहत की सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर काम कर रही है, जबकि स्कूलों में बेहतर सहूलियात देकर इनरोलमेंट को बढ़ाने पर भी काम जारी है।
कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहे और शहरियों ने वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को अपने मसाइल से मुताल्लिक दरखास्तें पेश की, जिनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए गए। वज़ीर आला ने कहा कि गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे और अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की 5 यूनिवर्सिटीज़ के मयार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद और मुआवनत फराहम की जाएगी और उन्हें दरपेश मसाइल और मुश्किलात को हल करने के सिलसिले में तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि निज़ाम तालीम में इस्लाहात लाकर जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी और काबीना अरकान समेत दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अबसार आलम को उनके किरदार की वजह से नौकरी से निकाला गया, लेकिन नवाज शरीफ दौर में उन्हें चेयरमैन पैमरा तैनात करके नवाजा गया। आमिर लियाकत ने कहा कि मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। पैमरा के चेयरमैन के लिए एक इश्तिहार शाया हुआ था, इश्तिहार पर वो पूरा नहीं उतरते थे। उसके बाद दोबारा इश्तिहार शाया किया गया जिसमें क्वालिफिकेशन कम की गई और उसके बाद उनको पैमरा का चेयरमैन लगाया। कम ज़र्फ है कि जो किसी के जाने के बाद उसकी बुराई करते हैं, आला ज़र्फ वो होते हैं जो सामने बात करते हैं। आप किसी को मत घसीटें, मेरा सिर्फ इतना कहना है जनाब अबसार आलम साहब से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, हम पुराने कॉलीग रह चुके हैं, आपको फिर समझाता हूँ कि आपके पास अगर कोई दलील नहीं है तो पहले दलील लाएं, वरना जलील हो जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों, सखर और इसके गिरदोनवाह में धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लय -8, स्कर्दू -7, कल्लात, गिलगित -4, गोपस -3, अनंतनाग, कालाम, स्तोर -2, कोयटा और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।